Good morning, class 11th. In accountancy class, today's our topic is rectification of error and the one-sided error. One-sided errors arises when the trial balance is matched. It means the trial balance are equal, are not equal. Then the one-sided error are to be arises. Two-sided error when the trial balance is equal, and when the trial balance is not equal, then one-sided error is to be arises. Now the two types of situation is arises in the one-sided error. Number one, when the accounts are closed and when the accounts are not closed. So when the accounts are not closed, it means before closing the accounts, when the trial balance is to be maintained and the trial balance is not tally, it means there is an error, and that error will be known as the one-sided error. Right? And when before closing the accounts, this type of error is to be rectified very easily. We can enter the account. If the debit side is short in an account, then put up the amount in the debit side. And if the credit side is exceed of any account, then come to the reverse side, put up the amount with difference amount into the debit side, reverse side. If exceed, come to the reverse side. If less, then put up into the same side. It means before closing the accounts, the account can be rectified very easily. But now the question arises if there is a one-sided error and the accounts are closed on 31st March. Right? So after closing the accounts, trial balance, even the trial balance is not tallying, but the accounts are closed, then how can we rectify this? We can rectify this type of error by passing a journal entry in the next year, and this is a one-sided error and we have to use the suspense account in opposite. So let us understand this topic within some of the numerical, that is example number 12. Here is the example number 12, and the statement of example number 12 is rectify the following error assuming that the suspense account was opened and ascertain the difference in the trial balance. Right? So these are the one-sided error and suspense account is open because the trial balance is not tally, so suspense account is to be used. And the transaction, some of the error are to be rectified. In this, number one is credit sale to Arun 7,000 were posted to his account, were posted to the credit side of his account. Credit sale to Arun, so the entry should be made Arun debit to sale. It means अरुण की डेबिट में 7,000 जाना चाहिए था, लेकिन आप अरुण की क्रेडिट में 7,000 डाल रहे हो, तो ठीक करने के लिए क्रेडिट वाला भी डेबिट में आ जाएगा और जो डेबिट होना चाहिए था वो भी डेबिट में आएगा. सो अरुण शुड बी डेबिटेड विद 14,000. राइट? तो दिस इज ए वन साइडेड एरर, क्योंकि अरुण के अकाउंट में ही प्रॉब्लम है, बाकी अकाउंट ठीक है. अरुण के अकाउंट की क्रेडिट साइड में 7,000 आना चाहिए था, लेकिन आप अरुण के अकाउंट की डेबिट साइड में 7,000 आना चाहिए था, लेकिन आप अरुण की क्रेडिट में डाल रहे हो, तो क्रेडिट वाला जो रॉन्ग है वो भी डेबिट में डलेगा और जो डलना चाहिए था वो भी डेबिट में चलेगा. सो अरुण शुड बी डेबिटेड विद 14,000. So the rectifying entry is Arun debit to suspense account 14,000, and the narration is credit sale to Arun wrongly credited to his account. Second transaction, credit purchase from Bridge 9,000 were posted to the debit of his account 6,000. ब्रिज से गुड्स परचेज किया, एंट्री होनी चाहिए परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज. राइट? सो ब्रिज की क्रेडिट में 9,000 डालना चाहिए था. ब्रिज की क्रेडिट में 9,000 डालना चाहिए था, लेकिन गलती से आप ब्रिज की डेबिट में 6,000 डाल रहे हो, तो 6,000 जो डेबिट में डाला वो क्रेडिट में आ जाएगा और जो 9,000 क्रेडिट में डालना चाहिए था वो भी क्रेडिट में आएगा. सो ब्रिज शुड बी डेबिट क्रेडिटेड विद ₹15,000 and the rectifying entry made suspense account debit to bridge with ₹15,000, and the narration is goods purchased from bridge but wrongly debited by ₹6,000. नेक्स्ट इज गुड्स रिटर्न टू चारू. रिटर्न टू चारू है तो ये परचेज रिटर्न है, एंट्री होनी चाहिए चारू डेबिट टू परचेज रिटर्न. चारू को 4,000 से डेबिट करना था, लेकिन गलती से हम चारू को 4,000 से क्रेडिट कर रहे, तो जो क्रेडिट वाला अमाउंट भी डेबिट में आ जाएगा और डेबिट वाला अमाउंट जो डेबिट में आना चाहिए था वो भी डेबिट होगा. सो चारू शुड बी डेबिटेड विद डबल अमाउंट एंड द रेक्टिफाइंग एंट्री शुड बी मेड चारू डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट विद ₹8,000. नेक्स्ट इज goods returned from Deepika. It's a sale return.
गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका, इट्स अ सेल रिटर्न, और एंट्री होनी चाहिए सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपिका। इट मीन्स दीपिका को हमें 1000 रुपीज से क्रेडिट करना चाहिए था। दीपिका को हमें 1000 रुपीज से क्रेडिट करना चाहिए था, लेकिन हम गलती से दीपिका को 2000 से डेबिट कर रहे हैं। तो 2000 जो आपने गलती से डेबिट में डाला ठीक करने के लिए, उसको भी क्रेडिट में डालो, और 1000 से आपको क्रेडिट करना चाहिए था वो भी डालो। तो दीपिका आपकी 3000 से क्रेडिट हो जाएगी, एंड द रेक्टिफाइंग एंट्री इज टू बी मेड सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू दीपिका विद ₹3000। नेक्स्ट इज कैश सेल ₹2000 were posted to the debit of sale account 5000. Cash sale entry should be made cash account debit to sale account, यानी कि सेल अकाउंट को आपको क्रेडिट करना चाहिए था 2000 से, जबकि आप सेल अकाउंट को डेबिट कर रहे हो 5000 से। तो 5000 जो आपने गलती से डेबिट में डाला ठीक करने के लिए 5000 को क्रेडिट में डालो, और 2000 जो डालना चाहिए था वो भी डालो। तो सेल अकाउंट आपका क्रेडिट होना चाहिए 7000 से। सो रेक्टिफाइंग एंट्री इज टू बी मेड सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट विद ₹7000. So all the entries, all the transactions are to be rectified in example number 12. Now we have to make the suspense account. First entry is Arun debit to suspense, तो suspense की क्रेडिट में 14000. सेकंड एंट्री के अकॉर्डिंग सस्पेंस की डेबिट में 15000. थर्ड एंट्री के अकॉर्डिंग सस्पेंस की क्रेडिट में 8000. फोर्थ एंट्री के अकॉर्डिंग सस्पेंस की डेबिट में 3000 एंड देन 7000. राइट, तो जैसे हम लेजर पोस्टिंग करते हैं उसी तरह से हम सस्पेंस अकाउंट इसी एंट्री के अकॉर्डिंग बनाएंगे. सो द टोटल ऑफ सस्पेंस अकाउंट डेबिट साइड 25,000 एंड द क्रेडिट साइड 22,000. देन द डिफरेंस अमाउंट इज 3,000 एंड क्लोज द अकाउंट ऑफ सस्पेंस विद ₹25,000. Right, so this is the question of one-sided error. One more questions from the book, that is example number 15, and the statement of example number 15 is a credit purchase of 2800 was passed through the sale day book. क्रेडिट परचेज को हमने सेल बुक में डाल दिया. एंट्री करनी चाहिए थी परचेज अकाउंट डेबिट टू पर्सन, लेकिन हम एंट्री कर रहे हैं पर्सन डेबिट टू सेल. राइट, तो परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुआ तो अब कर दीजिए परचेज अकाउंट डेबिट 2800. आपने गलती से सेल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, एंट्री परचेज की थी, आप सेल में डाल रहे हो तो सेल अकाउंट गलती से क्रेडिट हो गया. ठीक करने के लिए सेल अकाउंट को भी डेबिट करना पड़ेगा. सो परचेज डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुआ अब कीजिए. सेल गलती से क्रेडिट हुआ, ठीक करने के लिए सेल भी डेबिट. और पर्सन को आपको 2800 से डेबिट करना चाहिए था, जबकि आप पर्सन को 2800 से क्रेडिट कर रहे हैं. राइट, सो सपोज इट दिस इज योर पर्सन अकाउंट, इट शुड बी 2800 डेबिट साइड, लेकिन आपने डेबिट में तो डाला नहीं 2800, आप क्रेडिट में डाल रहे हो, तो ये वाला अमाउंट भी इधर आ जाएगा, एक जो होना चाहिए था वो भी डेबिट हो जाएगा. सो पर्सन शुड बी क्रेडिटेड विद ₹5600 डबल अमाउंट, एंड द रेक्टिफाइंग एंट्री इज टू बी मेड परचेज अकाउंट डेबिट 2800, सेल अकाउंट डेबिट 2800 टू पर्सनल अकाउंट 5600. Next transaction, goods of the value of ₹2000 returned by Mr. Gupta were entered in the sale day book and posted thereafter to the credit of his account. Right? Goods of the value of ₹2000 returned by Mr. Gupta. Returned by Mr. Gupta, तो एंट्री होनी चाहिए थी सेल अकाउंट डेबिट टू गुप्ता, बट हमने एंट्री कर दी. But the entry is to be make in the sale book, but his account is rightly credited. गुप्ता ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सेल अकाउंट को आपने सेल रिटर्न अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, नहीं किया, तो अब कर दीजिए सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट. और सेल अकाउंट गलती से क्रेडिट हो गया, ठीक करने के लिए सेल अकाउंट भी डेबिट. बट गुप्ता ठीक है, गुप्ता अकाउंट इज राइटली पोस्टेड. सो द प्रॉब्लम इज आपका सेल अकाउंट गलती से क्रेडिट हो गया, ठीक करने के लिए सेल अकाउंट को भी डेबिट, सेल रिटर्न अकाउंट को भी डेबिट होना चाहिए था. सो द रेक्टिफाइंग एंट्रीज सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट 2000, सेल अकाउंट डेबिट 2000 टू सस्पेंस अकाउंट 4000. थर्ड ट्रांजेक्शन इज ₹2600 stolen by an ex-employee stood debited to suspense account. Right? So the stolen by an ex-employee, this is a loss, and loss by theft account should be debited. So the entry will be made loss by theft account debit to suspense account with ₹2600. Next is 3000 received from a customer as an advance order was credited to sale. Right?
तो 3,000 रुपए हमें एडवांस ऑर्डर के मिले पर्सन से, लेकिन हमने गलती से सेल अकाउंट के क्रेडिट में डाल दिए। सेल अकाउंट को हमने गलती से क्रेडिट कर दिया। ठीक करने के लिए हम एंट्री करेंगे सेल अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। कस्टमर को क्रेडिट होना चाहिए था, लेकिन आप सेल को क्रेडिट कर रहे हो। ठीक करने के लिए सेल डेबिट हो जाएगा और कस्टमर क्रेडिट एंड द रेक्टिफाइंग एंट्री इज सेल अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट विद ₹3,000. Next is a sum of 800 written off as depreciation on machinery was not posted to depreciation account. 800 रुपीज हमने मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया, लेकिन हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट के लेजर पोस्टिंग में नहीं डाला। When the depreciation is to be charged, then the entry will be made depreciation account debit to machinery account. So depreciation should be debited in the ledger. लेकिन हमने नहीं डाला तो अब कर देंगे depreciation account debit, and it's a single error because the error is to be made only in depreciation account. Then using the suspense in above it, then the entry will be made depreciation account debit to suspense account with ₹800. Next is purchase of a scooter was debited to conveyance account 16,000. हमने स्कूटर परचेज किया, लेकिन गलती से इस कन्वींस अकाउंट में डाल दिया। स्कूटर परचेज किया तो स्कूटर डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुआ तो अब कर देंगे स्कूटर अकाउंट डेबिट 16,000 और कन्वींस को आपने गलती से डेबिट किया। ठीक करने के लिए कन्वींस क्रेडिट हो जाएगा। रेक्टिफाइंग एंट्रीज स्कूटर डेबिट टू कन्वींस अकाउंट विद ₹16,000. Then charge depreciation on it. So that when we charge 10% depreciation on it, then the entry will be made depreciation account debit to vehicle account with ₹1,600. Next is payment of 500 to Mohan and 600 to Sohan was made, but Mohan was debited with 600 and Sohan was 500. Right? मोहन को हमें 500 रुपए पे करने थे, सोहन को हमें ₹500 टू मोहन एंड 600 टू सोहन। 500 रुपए मोहन को पे करने थे, 600 रुपए सोहन को पे करने थे, लेकिन हमने अपोजिट कर दिया। इट मीन्स सोहन जो है वो 100 रुपीज से कम डेबिट हुआ और मोहन जो है वो 100 रुपीज से ज्यादा डेबिट हुआ। ठीक करने के लिए मोहन को क्रेडिट कर दो, सोहन को डेबिट, एंड एंट्री विल बी मेड सोहन डेबिट टू मोहन विद ₹100. Next is sales to X500 were posted. Sales to X500 posted to Y account. Right? When the goods are sold to X, then the journal entry will be made X debit to sale. और पोस्टिंग कहाँ होगी? X की डेबिट में। लेकिन हम X की डेबिट में अमाउंट डालने की बजाय Y को डेबिट कर रहे हैं। Y को गलती से डेबिट कर रहे हैं। ठीक करने के लिए Y को क्रेडिट करना पड़ेगा और X को डेबिट। सो द रेक्टिफाइंग एंट्री विल बी मेड X debit to Y with ₹500. So student, this was the questions of one-sided error of example number 15. Now you have to complete your back exercise question up to question number 15. Thank you.